சாந்தி. ரேஷ்மி சிஸ்டர் அனைவரின் சார்பாக நமது அன்பு சகோதரரையும் உங்களையும் அன்பான மாலை வணக்கத்தோடு வரவேற்கிறோம் சிஸ்டர். ओम அனைவருக்கும் शांति गुड इवनिंग बाबा। மாலை வணக்கம். ओम शांति भगवान भाई जी। ओम शांति। शांति भाई जी। तो आज हम लोग जो कल बाबा की मुरली चली मधुबन में, उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल विशेष बाबा ने जो अंडरलाइन कराया, ज्वाला स्वरूप योग तपस्या के द्वारा मैंपन की पूछ को जला करके बाप समान बनो तो समीपता नजदीक आएगी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। நேத்து பாபா மீட் பண்ணோம் நாம. இப்போ அந்த முரளியினுடைய டாபிக் கூட ஜுவாலாமுகி யோகா மூலமாக அந்த மேப்பன் நான் எனது என்ற வாளை எரித்து விடுங்கள், சமாப்தின்ற டைம் வந்து விடும். பாபா இதை பற்றி சொன்னாங்க. இப்போ பாய்ஜி நமக்கு அதை சிந்தனை செய்து சொல்றாங்க. क्योंकि मधुबन में जो मुरलियां चलती है उसका बहुत बड़ा महत्व है। हम पहले मुरली के बारे में भी चर्चा की थी विस्तार में। एक राज्य, एक धर्म, एक राज्य। रोज अपने चार्ट को चेक करना है और अपने को चेंज करना है। वो पिछली मुरली थी, ये सेकंड ग्रुप है। तो 15 दिन तो किया होगा आप लोगों ने पुरुषार्थ। तो अभी हमें आगे 15 दिन के लिए ये पुरुषार्थ करना है, हमारे अंदर ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहना है और मैंपन अभिमान ना आए, और इससे हम बाप समान बन सकेंगे। நமக்கு போன ஹோம்ஒர்க் என்னன்னா, ராஜ்யம் ஒரே ராஜ்யம் ஒரே தர்மம் அப்படி இருக்குதானே அப்படின்னு பாபா கேட்டாங்க. மனது மட்டும் இருக்கா, மாயா ஜீதா அப்படிலாம் கேட்டாங்க. அந்த ஹோம்ஒர்க்க செய்தோம். இப்பொழுது ஜுவாலாமுகி ஸ்திதி இருக்க வேண்டும். மேப்பன் நான் எனது அந்த வாளை எரித்து விட வேண்டும். இந்த ஹோம்ஒர்க்க இப்ப நாம அடுத்து பாபா மீட் வரைக்கும் செய்யும். बाबा ने शुरुआत ही की थी सब खजानों के मालिक। बाबा ने कहा 3 प्रकार के खजाने दिए हैं। एक तो अपने पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्धता का खजाना। दूसरा बाबा ने कहा कि संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, ये दुआओं का खजाना। और तीसरा खजाना संबंध संपर्क में मनसा वाचा कर्मना के द्वारा बेहद और निस्वार्थ भाव से सेवा कर पुण्य का खाता जमा। तो ये 3 खाते बाबा ने विशेष कल याद कराया। பாபா விசேஷமா 3 விஷயங்கள் சொன்னாங்க. ஒன்று, பாபா கஜானாக்களின் மாலிக், நம்மையும் அப்படி பாக்குறாங்க. அப்போ பாபா எவ்வளவு சேமிப்பு வச்சிருக்கிறோம்னு சொன்னாங்க. புருஷார்த்தத்தின் மூலமா எவ்வளவு பிராப்தி வச்சிருக்கிறோம், புருஷார்த்தம் பிராப்தி. இரண்டாவது திருப்தி, திருப்தியின் மூலமாக ஆசீர்வாதம் எப்படி வச்சிருக்கிறோம். அடுத்து நம்மளுடைய சம்பந்தம் தொடர்பில் வருபவர்களுடன் நிஸ்வார்த்த சுயநலம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் எப்படி இருக்கிறோம். அப்போ நமக்கு புண்ணியத்தின் கணக்கு எப்படி இருக்கிறது, இப்படி எல்லாம் பாபா நம்மள செக் பண்ணாங்க. நாமை செக் பண்ண வேண்டும். और जिनके पास ये खजाने जमा है 3, उनके बाबा ने निशानी बताए, वो सदा संतुष्ट रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रहेगी। ये निशानी है। ஒருவேளை பாபா சொல்ற மாதிரி என்கிட்ட சேமிப்பு இருக்கு, பாபா சொல்றாங்க சேமிப்பை பாக்குறேன், நீங்களும் பாருங்க. சேமிப்பு இருக்குன்னா அடையாளம் திருப்தியாக இருப்போம், மகிழ்ச்சியாக இருப்போம். பாபா சொன்னாங்க அடையாளம் திருப்தியா இருப்போம், மகிழ்ச்சியா இருப்போம், சுப பாவனை இருக்கும். और उस खजाने की चाबी बाबा ने 3 डॉट बताया। 3 डॉट मतलब मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। அந்த திருப்தி இதெல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா, அதை செக் பண்ண சொல்லிட்டாங்க இல்லையா. அடுத்து சாவி பத்தி சொன்னாங்க பாபா. 3 பிந்தி, 3 புள்ளி, ஆத்மா புள்ளி, பாபா புள்ளி, டிராமா புள்ளி. இந்த 3 புள்ளி தான் சாவி. और इस खजानों को वृद्धि करने का आधार दृढ़ता। जितना दृढ़ता अंदर से होगी उतना ये खजाने वृद्धि को पाएंगे। அந்த கஜானாக்களை விருத்தியாக்குவதற்காக, பொக்கிசத்தை விருத்தியாக்குவதற்காக திடத்தா வேண்டும். சாவியினுடைய நம்பர் 3 புள்ளி. लेकिन बाबा ने कहा कभी कभी पुरुषार्थ करते करते
हमारे अंदर डबल मैं आता है, मैं देह भान वाला मैं, अपमान वाला मैं। तो इस मैंपन के कारण जो बाप समान स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति नहीं रहती। நான் நான் அந்த எண்ணம் இருப்பதால், இந்த மேய்ப்பன் நான் நான் என்ற எண்ணம் இருப்பதால் ஸ்திதி எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்காது. அதை பற்றி பாபா நமக்கு நிறைய புரிய வச்சாங்க. और बाबा ने कहा कि इस खजानों को वृद्धि करने का मंत्र का यंत्र बनाओ, मनमना भव, मतलब ज्वाला स्वरूप स्थिति सदा बाबा की याद में जितना रहेंगे उतना ये खजाने बढ़ते जाएंगे। ये इस यंत्र को मंत्र बना करके क्या करो, उसको यूज करो। ஸ்திதி கரெக்டா இருக்கணும்னா ஜுவாலா சுரூபமா இருக்கணும். அதை பற்றி சொன்னாங்க. அடுத்து விருத்தியாக்கணும். பாபா கொடுத்திருக்கிற பொக்கிஷங்களை விருத்தி அதிகமாக்கணும். அதற்கு திடத்தா சொன்னாங்க பாபா. மந்திரத்தை எந்திரமாக்குங்கள். அதற்கு மன்மனாபவ மந்திரத்தை எந்திரமாக்குங்கள் அப்படி சொன்னாங்க பாபா. और ये खजाने जिसके पास जमा होंगे वो सदा निमित्त भाव में रहेगा, निर्माण भाव में रहेगा और सदा निस्वार्थ होकर के वो सेवा करेगा। யாரு சேமிக்கிறாங்களோ அந்த அடையாளம் கூட நிமித்து நிர்மான் நிர்மல் இந்த விஷயம் சொன்னாங்க. நிமித்தம்னாலே செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா, பணிவு இருக்கும், நிஸ்வார்த்த சுயநலம் எதுவும் இருக்காது, எதிர்பார்ப்பு. और बाबा ने कहा कि बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, महावीर हो, लेकिन जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है महावीर को पूछ थी और जब उन्होंने पूछ को आग लगाई तब लंका जल गई। इसी तरह ये समय समीप क्यों नहीं आ रहे, समान क्यों नहीं बन रहे, इसके अंदर ये पूछ है मैंपन की पच। मुझे पूछा ही नहीं, मैंने बिना पूछे किया, मैं पूछ बे, ये पूछ की पूछ, और इसीलिए विघ्न निर्माण होते हैं पुरुषार्थ में। समय संकल्प चला जाता है और पुरुषार्थ जो तीव्र होना चाहिए वो नहीं होता। इसीलिए बाबा कहा कि मैंपन के पूछ को जला दो तो बाप समान बनेंगे और समय समीप आएगा, समाप्ति का समय नजदीक आएगा। பாபா சொன்னாங்க பாப் சமான் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த மேப்பன் அப்படின்ற நான் நான்ற எனது நான் நான்ற வாள் இருக்கக்கூடாது. அந்த வாளை தான் அந்த ஹனுமானுக்கு வாள் காட்டியிருப்பாங்க. அந்த வாள் இருக்கக்கூடாது, நான் நான்ற வாள் இருக்கக்கூடாது. பாப் சமானாக இருக்கணும். யாரு நான் நான் என்கிட்ட கேட்டு செய்யணும், நான் யார் தெரியுமா, நான் யார் அப்படி நினைக்கிறாங்க, நான் தான் செய்தேன் நினைக்கிறாங்க, அவங்க எப்படி விக்ன விநாசக்காக முடியும்? அப்போ அந்த நான் என்ற வாளை இருத்திடணும். அதனாலதான் மகாவீர் காட்டப்பட்டிருக்கு. வாளை வச்சு அந்த வாள்ல நெருப்பு வச்சு இலங்கையவே எரிச்சுட்டாருன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம அந்த நான் என்ற வாளை எரித்து விட வேண்டும். ये मुरली दादी प्रकाश मणि की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, तब ये मुरली चली थी। मैंने देखा दादी ने ऐसी ऐसी मुरलियां सुन करके, हाँ, इसलिए दादी का फेमस ये है निमित्त भाव, स्तंभ के ऊपर भी लिखा हुआ है। दादी ने इन बातों का पुरुषार्थ करके दादी संपन्नता की तरफ गई, संपूर्ण बनी है। ये हमारे सामने मुरली चली। நேத்து பாபா சொல்லும்போது பிரகாஷ் மணி தாதி, ஜானகி தாதி, குல்சார் தாதி பாபாவுக்கு போக் ஆஃபர் பண்ண மேல வந்துருந்தாங்க இல்லையா? அப்போ பிரகாஷ் மணி தாதி இந்த 2006 2006 முரளி கேட்டோம். தாதிக்கு கொஞ்சம் உடல்நிலை டல்லா இருந்தது. தாதி நிமித்து நிர்மான் நிர்மல் அவங்களோட ஸ்லோகனே அதுதான். அப்ப தாதிஜி எப்படி சம்பன்னம் ஆனாங்க? நிமித்தம் நிர்மான் நிர்மல் ஃபாலோ பண்ணி தாரணை செய்து சம்பன்னம் ஆனார்கள். इसीलिए ये इस ज्ञान मार्ग में सबसे खतरनाक है अभिमान। ये अभिमान जितना हमें सफलता मिलती है, जितना हम आगे बढ़ते हैं, जितना हमारे कार्य में सफलता मिलती है, जितनी हमारी वाहवाही होती है, हमारे अंदर का अभिमान बढ़ता ही जाता है। काम क्रोध कब आएगा पता चलता है, लेकिन अभिमान कब आएगा पता नहीं चलता। इसीलिए इस ज्ञान मार्ग में इस अभिमानपन से बचने की आवश्यकता है। ஞான மார்க்கத்துல அபிமான் வரக்கூடாது. ஞான மார்க்கத்துல நான் நான்ற அபிமானம் இருக்கக்கூடாது. அப்பொழுதுதான் வெற்றி கிடைக்கும். इसलिए बाबा कभी कहते कि मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? उनके अंदर कर्तापन का अभिमान आया,
मैंने किया, मैंने इतने सेंटर बनाए, इतने मेरे इतने जिज्ञासु मेरे ये, तो ये मैंपन अगर आएगा तो बाप समान नहीं बन सकेंगे। जैसे हमारा बाबा निराकारी अवस्था में है, सदा निराकारी अवस्था में। क्यों? बाबा इतना सारे संसार का मालिक, सब कुछ करता है, लेकिन तो भी बाबा निरहंकारी है। बाबा कहते हैं मैं नहीं कुछ करता हूँ, ये ड्रामा कराता है, बच्चे तुम लोग ये करते हो। तो शिव बाबा ने में कितना निरहंकारिता है, ब्रह्मा बाबा ने में कितनी निरहंकारिता है। ये निरहंकारी बनना, इससे हम बाप समान बन सकेंगे। பிரம்ம பாபா எப்படி நிரகங்காரியா இருந்தாங்க, பிரம்ம பாபா எப்படி நிரகங்காரியா இருந்தாங்க, அப்படி இருந்தால்தான் நாமளும் பாபா போல பாப்சமான் ஆக முடியும். ஞான மார்க்கத்துல அபிமானம் வரக்கூடாது. அச்சா அச்சா பச்சா பாபா சொல்றாங்க, நல்ல நல்ல குழந்தைகள், ஆனால் அபிமானம் இருந்தால் பாப்சமான் எப்படி ஆக முடியும்? பாபா போல நிரகங்காரியாக இருந்து பாப்சமான் ஆக வேண்டும். केवल ब्रह्मा बाबा की बात नहीं, शिव बाबा भी निरंकारी है। शिव बाबा तीनों लोगों का मालिक, सब कुछ, सारे संसार में सबसे बड़ा, लेकिन बाबा के अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं। बाबा कहते हैं ड्रामा कराता है, तुम लोग निमित्त हो। इसीलिए बाबा निरंकारी है, और इसीलिए बाबा सबके साथ दया करता है, अपकारी पर उपकार करता है, सबके प्रति शुभ भावना है। क्यों? निरंकारी है। अभिमान वाला कभी दूसरों को शुभ भावना नहीं दे सकता, दुआएं नहीं दे सकता, और उसके संकल्प विकल्प चलते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं पन के, जब भी कहीं मैं करता हूं, मैं करता हूं, तो मैं आत्मा, ये आत्मा करती है, आत्मा आत्मा को। பாபா சொல்றாங்க, நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மா அப்படிதான் நினைக்கணும். நான் அப்படி நினைக்க கூடாது. சிவபாபா எவ்வளவு நிரகங்காரி. பாபா எப்படிப்பட்டவங்களுக்கும் பாருங்க நன்மை செய்யறாங்க. கல்யாண்காரி பாபா கருணை இல்லத்தோடு அனைவருக்கும் நன்மை செய்யறாங்க. நான் அப்படி சொல்றது இல்ல. அதே குழந்தைகள் இப்படி தவறு செய்றீங்க அப்படியும் சொல்றது இல்ல. மாயா அவங்கள செய்ய வைக்குது அப்படி சொல்லிடுவாங்க. பிரம்ம பாபா எப்படி நிரகங்காரியா இருக்கிறாங்க? பிரம்ம பாபா, சிவபாபா நிரகங்காரி. அப்படி பாபா போன்று இருக்க வேண்டும், பாப்சமான் ஆகணும். அப்படி இருந்தால்தான் சுப பாவனை செய்ய முடியும். वास्तव में हमारे पास जो भी कला है, विशेषता है, सब कुछ, ये सारी बाबा की देन है। अगर मेरे लाइफ में बाबा ना होता तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बैकबोन बाबा करा रहा है उसको हम भूल जाते हैं, और हमारा अपना ईगो आता है, और ईगो के कारण आपस में क्या होता है, दरारें पैदा होते हैं, संगठन में दरारें पैदा होते हैं, आपस में दरारें पैदा होती है। फिर एक दूसरे का परिचिंतन करना शुरू करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वायुमंडल खराब करते हैं, और इसीलिए बाप समान नहीं बन रहे, और इसीलिए बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो रही, और ये जो समय विनाश का समीप आना चाहिए वो नहीं आ रहे। इसीलिए इस मुरली में बाबा ने ये अटेंशन दिलवाया, इस मैंपन के पूछ को क्या करूं, योग तपस्या के द्वारा, ज्वाला स्वरूप तप के द्वारा जलाओ, अभिमान से मुक्त बनो। பாபா சொல்றாங்க, அபிமானம் இருக்கக்கூடாது. ஜுவாலா சொரூப யோகா செய்ய வேண்டும். நாம கவனம் கொடுக்க வேண்டும். பாபா சொல்றாங்க, பாபாவை பிரத்யட்சம் செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் விநாச நேரம் கூட வரும். அப்ப பாப் சமான் ஆகணும், பாபாவை பிரத்யட்சம் செய்யணும்னா அந்த நான், எனது இந்த விஷயங்கள் இருக்கவே கூடாது. நிமித்தம் செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா. என்னெல்லாம் விசேஷத்தா இருக்கோ அது பாபாவுடைய பிரசாதம், பாபா கொடுத்தது, பாபா வள்ளல், பாபா கொடுத்தது அப்படிதான் நினைக்கணும். நான் செய்தேன் அப்படி நினைக்க கூடாது. ஒருவேளை பாபா கிடைக்கலன்னா அந்த விசேஷத்தை அவங்களுக்கு யார் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க? பாபா தான் செய்பவர் செய்விப்பவர். जितनी जितनी जितना समय नजदीक आएगा, जितना आगे बढ़ेंगे, जितना सफलता होगी, ये अभिमान हमारे अंदर का बढ़ता ही जाएगा, ईगो बढ़ता ही जाएगा। अगर ईगो बढ़ेगा तो हम और परेशान हो जाएंगे, और हमारे अंदर हमारा योग नहीं लगेगा, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, मन में निगेटिव विचार चलेंगे। इसीलिए इस हर एक के अंदर जो अभिमान छुपा हुआ है, इस अभिमान के मैंपन के पूछ को हमें समाप्त करना है, जलाना है, काटना है। அந்த அபிமான் என்ற வாளை கட் பண்ணிடணும், எரிச்சிடணும். இப்ப ஹனுமானுக்கு வாள் காட்டியிருப்பாங்க, அதுல நெருப்பு வச்சு இலங்கை எரிச்சிருவாரு. அப்படி நாம அபிமானம் என்ற ஈகோவை எரித்து விட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும். और जिन्होंने योग तपस्या के द्वारा
मैंपन के पूछ को आग लगाई, पूछ को खत्म किया, वही सतयुग में जाएंगे। इसीलिए सतयुग में किसी भी गोप गोपिकाओं को पूछ नहीं है। जो त्रेता के राम के जितने भी भगत है सबको पीछे से पूछ है, क्योंकि उन्होंने मैंपन के पूछ को आग नहीं लगाई थी, मैंपन के पूछ को समाप्त नहीं किया था। अगर ये पूछ रहेगी, अभिमान रहेगा, ज्ञान योग करेंगे, असफल बनेंगे, फेल हो जाएंगे और सारे त्रेता युग में चले जाएंगे। சத்தியுகத்துல ஹனுமான் வாள் காட்டப்படவில்லை. சத்தியுகமே இன்னைக்கு சத்தியுகத்துல ஹனுமானோ வாளோ காட்டப்படல. வாளை கட் பண்ணியாச்சு, வாளை எரிச்சாச்சு, அபிமானம் இல்ல, பாஸ் ஆகிட்டாங்க. திரேதா யுகத்துல ஹனுமான் இருக்காரு, வாள் இருக்கு, அபிமானம் இருக்கு, ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க. அதனால சத்திரிய திரேதா யுகம். सत्युग में जो भी गोप गोपिका, किसी भी गोप को गोपिका को एक भी पूछ नहीं है, बिना पूछ वाले हैं, क्योंकि ये सारी वो आत्माएं निरहंकारी बन करके गई है। तो इसलिए निरहंकारी बनेंगे, वही समय को समीप लाएंगे, वही अपने चलन चेहरे के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। சத்தியுகத்துல இருக்கக்கூடியவங்க பாபாவை பிரத்யட்சம் செய்ய முடியும், நேரத்தை அருகில் கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா ஈகோ கிடையாது. சத்தியுகத்துல அந்த வாள் காட்டப்படவில்லை, ஹனுமானோ வாளோ காட்டப்படல. யாருக்கு அந்த பூஞ்ச் வாள் இல்லையோ, அப்ப ஈகோ இல்லையோ, அவர்களால் பாஸ் ஆக முடியும், பாபாவை பிரத்யட்சம் செய்ய முடியும். जैसे स्कूल कॉलेज में दिखाया जाता है, जैसे स्कूल कॉलेज में केवल बच्चों की अगर आईक्यू ज्यादा, एक तो जैसे टेबल है, टेबल के 4 पांव होते हैं, अगर एक ही पांव तो टेबल हिल जाएगा, गिर जाएगा। तो विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी के 4 पांव मजबूत चाहिए। एक आईक्यू, आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा पावा ईक्यू, इमोशनल भावनात्मक क्षमता। तीसरा एमक्यू, मॉरल नैतिक क्षमता। और चौथा एसक्यू, स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता। जिन बच्चों के 4 सब्जेक्ट हैं, वो बच्चा समाज में असफल नहीं बन सकता, कभी भी फेल नहीं हो सकता। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में भी हमारे 4 पांव मजबूत चाहिए। ஐக்கியூ மானா பாய்ஜி? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। ஆஹ் நமக்கு 4 கால்கள், இந்த ஏக் தோ தீன் சார் 4 கால்கள் ஒரே காட்டப்பட்டிருக்கு. எப்படி ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல பகவான் பாய் கிளாஸ் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க, 4 கால்கள் இருந்தால்தான் அந்த சேர்ல உட்கார முடியும், அந்த பெஞ்சு அதை நாம யூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு கால் மட்டும் இல்லைன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்படி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன், எமோஷனல், ஐக்யூ, இக்யூ, மாரல், அதுக்கு எம்கியூ, ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூ, இப்படி எல்லாமே இருந்தால்தான் வெற்றி அடைய முடியும். 4 கால்கள். लेकिन आज के स्कूलों में क्या करते हैं, केवल आईक्यू के पीछे है, बाकी ईक्यू, एमक्यू, एसक्यू के तरफ वो ध्यान नहीं देते। और आईक्यू डेवलप करके वो क्या करते हैं, अच्छी तरह नंबर से पास कराते हैं। जितनी जिसकी आईक्यू ज्यादा है, उसके अंदर ईगो डेवलप होता है, अभिमान आता है, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं। और वो अभिमान वाला बच्चा जब समाज में जाता है, न किसी ने उसको पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, तो फीलिंग में आता है, टेंशन में आता है। और इसीलिए आजकल सुसाइड कर रहे हैं, आजकल किसी को मारपीट कर रहे हैं, किसी के साथ बनती नहीं। ये प्रॉब्लम पढ़े लिखे होने के बाद भी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि उन्होंने विद्यार्थी जीवन में केवल आईक्यू डेवलप किया। इसी तरह अगर हम इस ज्ञान मार्ग में केवल एक पांव को डेवलप करेंगे, हम स्थिर बुद्धि नहीं बन सकेंगे, एक दूसरे के साथ एकता में नहीं रह सकेंगे, आपस में मिलकर के नहीं रह सकेंगे, और जीवन में विघ्न समस्या आती रहेंगी। इसलिए केवल आईक्यू नहीं, बाकी 4 पाव भी हमें मजबूत करने की जरूरत है। நமக்கு ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க பாய்ஜி, எப்படி இன்டெலிஜென்ட், எமோஷனல், மாரல் வேல்யூ, ஸ்பிரிச்சுவல். ஆனால் இப்ப உலகத்துல அந்த புத்திசாலியா இருக்கிறதுல மட்டும் கவனம் கொடுக்குறாங்க, மற்ற விஷயங்கள்ல கவனம் கொடுக்கல. அப்போ ஈகோ வந்துடுது, அவங்களுக்கு எப்படி வெற்றி கிடைக்கும்? ஆனா ஞான மார்க்கத்துல ஏக்குதா, ஒற்றுமையா இருக்கணும், புத்தி ஸ்திரமா இருக்கணும், சமஸ்யா பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது, ஈகோ இருக்கக்கூடாது, ஆன்மீகம் இருக்கணும். இந்த விஷயத்துல கவனம் கொடுக்கும் போது, ஈகோ இல்லாத பொழுது வெற்றி கிடைக்கும். इसलिए आज हम क्या करते हैं, केवल हमारा ध्यान किसके तरफ है, सेवाओं में ज्यादा ध्यान है, या हमारा धारणा के ऊपर ध्यान है, योग ज्ञान सुनाने पर ध्यान ही है। अगर योग के ऊपर ध्यान नहीं है, तो फिर हमारे अंदर ईगो डेवलप होता है। इसीलिए बाबा कहता है योग का भी बैलेंस रखना।
योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, धारणा भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। ये चार पाव हमारे चार विषय, चार सब्जेक्ट का बैलेंस, और ये बैलेंस में चलेंगे तब जाकर के हमारे अंदर विनम्रता आएगी, नम्रता आएगी, और तब हम बाप समान बन सकेंगे। நாம பாப்சமான் ஆகணும்னா ஒன்று பணிவு வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடுத்து இப்போ ஞானம், யோகம், சேவா, தாரணா எல்லாமே வேணும். ஞானம், யோகம், தாரணை, சேவா அனைத்துமே வேணும். எப்படி ஏதாவது ஒன்று மட்டும் இருக்கு அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஈகோ இருக்கக்கூடாது. அப்பொழுதுதான் வெற்றி அடைய முடியும். 4 கால்கள் இருந்தால்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். लेकिन हम केवल क्या करते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा कि ज्वाला स्वरूप तपस्या के तरफ रोज की मुरली में, साकार मुरली में भी बच्चे परसों था, याद की फांसी में रहो, लटके रहो। हाँ, तो यह याद के ऊपर बाबा क्यों अटेंशन दिलाता है? जो हमारा सच्चा सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, वो हमें आत्मिक सुख है, वो हमें परमात्मा की याद से मिलता है। लेकिन हम महिमा का सुख, सेवा ज्यादा करेंगे, कोई ये करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, क्लास कराएंगे, तो लोग कहेंगे अरे भाई बहुत अच्छा आपने सुनाया, कितना अच्छा सुनाया। ये तो हमारा एक प्रकार का महिमा वाला सुख हो गया। किसी कोई महिमा करे, सुख में आ गए, कोई साधन मिल गया, कोई सफलता मिली, वाह वाह हो गई। और इसलिए अगर जब नहीं हुआ तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है, हमें फीलिंग होता है, इसलिए अभिमान आता है। तो इसलिए अभिमान से मुक्त बनने के लिए हमें योग के द्वारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा सुख लेना ही आत्मिक, जिसका असली मय जागृत है, आत्मा जागृत है, वो बॉडी कॉन्शियस का मय फिर भूल जाएगा। நாம ஆத்மீக ஸ்திதியில இருக்கணும். ஞானம், யோகம், தாரணை, சேவை இந்த 4ம் வேணும். ஜுவாலா சுரூபமாக இருக்கணும். நம்மளுடைய நினைவு அப்படி கவனம் கொடுக்கணும். அதீந்திரிய சுகம் கவனம் கொடுக்கணும். யாராவது நம்மள மகிமை பாடுறாங்க, எப்படி ஞானம் சொல்றீங்க, எப்படி ஞானம் கேக்குறீங்க, அந்த விஷயங்கள்ல போயிடக்கூடாது. நாம யோகா மூலமாக, ஜுவாலாமுகி யோகா மூலமாக அபிமானத்தை நீக்க வேண்டும், பாஸ் ஆக வேண்டும். जैसे हम मुकुटा पहन के चलते हैं, तो हमारे भी प्रकार का 2 मुकुटे हैं। मुकुटे मतलब जैसे एक तो असली मय, आत्मामय के स्वरूप में टिकना, और दूसरे मुकुटे में पैसे वाला हूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं बहुत अच्छी क्लास कराता हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये झूठे मय के बहुत सारे मुकुट हैं। और इस स्वरूप में जब हम चलते हैं, सामने वाला उस प्रकार का रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं किया, पूछा नहीं, सम्मान नहीं किया, तो फिर हमें अपमान की फीलिंग होती है, अरे मैं तो इतना पुराना हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ, फिर भी इसने मुझे पूछा नहीं। ये हमारी अपेक्षा जब पूरी नहीं होती, तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, संकल्प विकल्प चलते हैं, और वो हमारी निराकारी स्थिति, बाप समान स्थिति, दुआओं देने वाली स्थिति, शुभ भावना वाली स्थिति वो नहीं रहती। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा असली मय, आत्मामय का मुकुटा पहन कर रखो, तो कोई पूछे न पूछे, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, स्थिर रहेंगे, बाप समान बन जाएंगे। ஜுவாலா சொரூபத்தின் மூலமாக வாப்சமான் ஆக வேண்டும். நம்முடைய யோகா அப்படி இருக்கணும். ஜுவாலா சொரூபமா இருக்கணும். நிராகார ஸ்திதி இருக்கணும். ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும். இல்ல டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு, எப்படி ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாங்க? டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, தனக்கு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கல, நான் தனவான், நான் எப்படி பாருங்க இந்த மோதிரம் போட்டிருக்கிறேன், இப்படி இருக்கிறேன் பாக்குறதுக்கு, என்னோட ஞானம் பாருங்க, அப்படி எல்லாம் நினைக்கிறாங்க, டிஸ்டர்ப் ஆகுறாங்க, தன்கிட்ட கேட்கல, தன்கிட்ட சொல்லலன்ற ஈகோ வந்துருச்சு. அப்ப ஆசீர்வாதம் எப்படி கொடுக்க முடியும்? அதுல இருந்து விடுபட்டு நிராகார ஸ்திதியை அனுபவம் செய்ய வேண்டும், வாப்சமான் ஆக வேண்டும். इसीलिए सदा निरहंकारी बनने के लिए ज्वाला स्वरूप स्थिति से हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। और आत्मिक स्थिति वालों को कोई पूछता है, पूछा न पूछा, सम्मान दिया, मान अपमान, वो सदा ये 3 बिंदी लगा सकता है, उसकी चाबी वो खजाने की चाबी खुल सकते है। वो सदा मैं आत्मा बिंदी के स्वरूप में रहेगा। जो ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहता है वो सदा ही बाबा को भी बिंदी स्वरूप में देखेगा, और सदा ड्रामा के ऊपर भी बिंदी लगाएगा। ये 3 बिंदी है तो अपने आप क्या हो जाते हैं, खजाने की चाबी, चाहे हर प्रकार का खजाना खुल जाता है। हम सदा संतुष्ट रह सकेंगे, निरहंकारी बन सकेंगे। इसलिए ये ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा हमें क्या करना है, आत्मिक स्थिति को बनाना है, और आत्मिक स्थिति बना करके निरहंकारी बनने की जरूरत है।
ஆத்மீக ஸ்திதி இருக்கணும், ஜுவாலா சொரூப யோகா இருக்கணும், ஆத்மீக ஸ்திதி இருக்கணும், நம்ம திருப்தியா இருக்கணும், அகங்காரி, அகங்காரமே இருக்கக்கூடாது, அகங்காரியா இருக்கணும். பாபா கூட சொன்னாங்க 3 புள்ளி சொன்னாங்க. ஆத்மா பார்க்கணும், பாபாவையும் புள்ளியா பார்க்கணும், டிராமான்னு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடணும். விஷயங்களை நினைக்க கூடாது, பாபாவை நினைக்க வேண்டும். वास्तव में हमारे द्वारा जो सेवा कराता है, कार्य कराता है, बाबा कराता है। जैसे पांडवों ने क्या किया, अंत तक भी कृष्ण को नहीं पहचाना कि कृष्ण हमको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इसी तरह आज हमने भी अभी तक भी बाबा को नहीं पहचाना। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई। हाँ, ऐसा क्यों बोलता है? बाबा कहता है ब्राह्मण आत्माओं ने भी अभी तक मुझे नहीं पहचाना है। हाँ, कई बार हम लगते हैं कि हम करा रहे, हम तो कुछ नहीं करा रहे, ये सारा कराने वाला बाबा है, हमारा बैक बोन बाबा है। ये हमारी स्थिति रही तब निरंकारी बन सकेंगे। எப்போ செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா அப்படி நினைக்கிறோமோ அப்பதான் நிரகங்காரியாக இருக்க முடியும். பாபா தான் செய்பவர் செய்விப்பவர் அப்படி நினைத்தால்தான் நிரகங்காரியாக இருக்க முடியும். நான் செய்யறேன், என்னால முடியும், நான் யார் தெரியுமா அப்படின்ற அபிமானம் இருந்தால் அனுபவம் செய்ய முடியாது. इसे एक महाभारत में एक बहुत सुंदर एक दृष्टांत बताते हैं। जब कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था, उस समय भीम का पोत्रा जिसका नाम था बारबरिक को पता चला कि युद्ध होने वाला है, तो मैं भी उस युद्ध में भाई जी भाग लूंगा। ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो नहीं आ रहा है, क्या हो? சிஸ்டர் பிரதரோட ஆடியோ வருது, உங்க ஆடியோல தான். உங்களுக்கு கேட்கலையா? आ रहे हैं எனக்கு अभी கேட்கலையே. हाँ? நான் பேசுறது கேக்குதா? நீங்க பேசுறதுமே ரொம்ப லோவா இருக்கே. அப்பனா நீங்க வெளியில போயிட்டு திரும்ப வந்து உள்ள வந்து கனெக்ட் ஆகுங்க சிஸ்டர். ஏதோ உங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம். நான் எங்களுக்கு நல்லா கேக்குது, மித்தவங்களுக்கு எல்லாம் கேக்குது இல்லையா? யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. கேக்குதுங்க. எல்லாத்துக்குமே கேக்குது சிஸ்டர். ஓம் சாந்தி. கேக்குது சிஸ்டர். आ रहे हैं? आ रहा है भाई, आ रहा है। हाँ बस ठीक है। तो சிஸ்டர் मैं நீங்க போயிட்டு உள்ள வாங்க சிஸ்டர். 1 செகண்ட் பிரதர், 1 செகண்ட் சிஸ்டர் ரீகனெக்ட் ஆகணும். ஓகே. तो जैसे मैं बता रहा था, महाभारत में युद्ध होने वाला था कौरव पांडव का। उस समय एक बारबरिक था, वो भीम का पोत्रा था। उसको भी पता चला कि युद्ध होने वाला है, तो मैं भी उसमें भाग लूंगा। तो कृष्ण को पता चला वो युद्ध करने वाले आने वाला है। तो लेकिन बारबरिक को एक देवी का वरदान था, तुम अगर कमजोर पक्ष के साथ लड़ोगे तुम्हारी पावर अनेक गुना हो जाएगी और तुमको कोई हारा नहीं सकेगा अगर कमजोर पक्ष तक तरफ लड़ेगा तब। तो वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं, ऐसा करके आता है। भाई जी और एक बार सुना। वो कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था महाभारत में। तो उस समय एक बारबरिक था, बारबरिक मतलब भीम का पोत्रा। तो उसको पता चला युद्ध होने वाला है कौरव पांडव में, मैं भी भाग लूंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था कि अगर तुम कमजोर पक्ष की तरफ युद्ध करोगे तुम्हारी ताकत कई गुना हो जाएगी, तुम्हें कोई हारा नहीं सकेगा। ये देवी का वरदान था उसको, उसने तपस्या की थी। तो ठीक है सोचता है मैं कमजोर पक्ष की तरफ लड़ूंगा करके वो अपना युद्ध की तैयारी करते आता है। वो கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் யுத்தம். அப்ப பீமனோட புத்திரன் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு வரம் இருக்கு. என்னன்னா அவங்க பலகீனமானவங்களோட சண்டை போடக்கூடாது. அந்த மாதிரி தேவி அவங்களுக்கு வரம் கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப அடுத்து சொல்லுவாங்க। तो उसी समय कृष्ण को पता चला ये आने वाला है, अंतर ध्यान से उसको पता चला। तो वो सोचता है कि ये तो कौरव के साथ लड़ेगा क्योंकि कौरव पक्ष कमजोर है। अगर उनके तरफ लड़ेगा, कृष्ण इधर है, तो उनकी ना ये हारेंगे ना वो हारेंगे, तो प्रॉब्लम आएगा।
तो कृष्ण क्या करता है, उसके उसके रास्ते में जाता है, ब्राह्मण बन करके जाता है और उसको कहता है, "हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा इस ब्राह्मण को दान पुण्य करके जाओ तो तुम्हारी सफलता मिलेगी।" तो कहता है, "हे राजन, तुमको ये ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए दान पुण्य?" उसको लगा कोई जमीन मांगेगा, गाय मांगेगा। उसने कहा, "जो मैं मांगूंगा देंगे?" बोला, "हाँ, मेरा वचन है, जो मांगो वो मैं दे दूंगा।" ஆஹ் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் யுத்தம். அப்போ பீமரோட புத்திரன் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு சக்தி தேவியானவங்க என்ன வரம் கொடுத்திருக்காங்க, நீ பலகீனமானவங்களோடு சண்டை போட முடியாது அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிடுறாரு, அவர்கிட்ட எதுக்கு இந்த பிராமணன் வேடத்துல போய் நீ எனக்கு ஒரு தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்க போறாரு. तो कृष्ण कहता है, "ठीक है, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए।" जब सिर मांगा तो उसको लगा ये तो कृष्ण, और ये ऐसे कैसे मांगा है वो दान। तो फिर वो मतलब ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने ऐसा ये दक्षिणा कैसे मांगी। तो फिर उसने वचन तो दिया था, कहता है, "मैंने वचन तो दिया है, लेकिन आप कौन है?" तो कृष्ण अपने ओरिजिनल स्वरूप में आता है, कहता है, आपने मेरे साथ ऐसा।" कहता है, "ठीक है, मेरी इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है, मैंने वचन दिया वो पूरा करूंगा।" तो उसने अपना सिर काट करके क्या क्या कृष्ण को दिया। अब कृष्ण को दिया, कृष्ण ने क्या किया, एक जगह पर पेड़ पर उसको लटका करके बांध करके रख दिया। जब सारा युद्ध पूरा हो गया, आपस में पांडव लड़ने लगे थे। அந்த பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் யுத்தம். அப்ப கிருஷ்ணர் பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கிறதுனால வெற்றி கிடைக்கும். அப்ப பலகீனமானவங்க யாரு? கௌரவர்கள். இப்போ இவங்களுக்கு தேவி என்ன வரம் கொடுத்திருக்காங்க, பீமரோட புத்திரனுக்கு நீ பலகீனமானவங்களோட யுத்தம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ யுத்தத்துல இப்போ இவரை கூட வச்சுக்க முடியாது, என்ன பண்றது? உடனே கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாங்க, பிராமணன் வேடத்துல நீ எனக்கு தானம் கொடுன்னு கேக்குறாங்க. உங்களுக்கு என்ன தானம் வேண்டும் அப்படின்னு அவர் கேக்குறாரு. நான் என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பியா, கொடுன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு உன்னோட தலைதான் வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. தலையவே கேக்குறதுன்னா பிராமணன் கேட்க மாட்டாரே அப்படின்னு உடனே கிருஷ்ணர் அவரோட வேடத்தை காட்டிடுறாரு, அவரோட வேஷத்தை காட்டிடுறாரு. ஓ, நீங்க தான் கேக்குறீங்களா, ஓகே, நான் என்னோட தலையை கொடுத்துடுறேன், ஆனா யுத்தத்தை நான் பார்க்கணும். உடனே மரத்துல அவரோட தலையை வச்சிருவாங்க. அவர் ஃபுல் யுத்தத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார். जब पांडव की विजय हो गई, कौरव सारे मर गए, दुर्योधन, दुशासन, ये सारे मर गए, विजय हो गई। जब विजय पांडव की हो गई तो उस समय पांडव क्या करते हैं, आपस में मिलकर के लड़ना शुरू करते हैं। कृष्ण अर्जुन कहता है, मेरे तीर के कारण विजय हो गई। तो भीम कहता है, मेरे गदा के कारण हुई। वो कहता है, मेरा तीर। वो कहता है, मेरी गदा। वो आपस में जोर जोर से लड़ रहे थे। तो उस समय जो ये था, ऊपर सिर उसी पेड़ के नीचे लड़ रहे थे। उस समय सिर कहता है, "अरे, मैं तो देख रहा था, ना तुम्हारे गदा थी, ना तुम्हारे तीर थे, एक चक्र आता था। चक्र आता था, चक्र क्या करता था, गला काटता था। वो तीर भी चलता था, तीर के सामने चक्र रहता था। गदा भी चलती थी, गदा के सामने चक्र चलता था। ये सारी विजय चक्र की अर्थात कृष्ण की है। अगर कृष्ण हमारे साथ में नहीं होता तो हम इस युद्ध में विजय नहीं बनते।" उसने देखा कि कहता है, मैं साक्षी होकर के देख रहा हूं शुरू से लेकर के, ये सारी विजय चक्र की अर्थात कृष्ण की। அந்த பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் யுத்தம் பண்றாங்க. ஃபுல் யுத்தத்தை அந்த தலையா இருந்து அவர் பார்த்துட்டே இருக்காரு மரத்துல இருந்து. யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே பாண்டவர்கள் 5 பேரும் என்னோட பலத்தாலதான் வெற்றி கிடைத்ததுன்னு சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. உடனே என்னோட ஆயுதம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் அம்ப சொல்லுவாரு, தர்மன் ஒண்ணு சொல்லுவாரு. ஆனால் அந்த தலை இருக்கு இல்லையா, அவர் சொல்லுவாரு, நான் ஃபுல் யுத்தத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன், கிருஷ்ணருடைய சக்கரம் தான் ஒவ்வொரு நேரமும் உங்களுக்கு வெற்றி கொடுத்தது. கிருஷ்ணனுடைய சக்கரம் தான் வெற்றி கொடுத்தது, உங்களுடைய ஆயுதம் அல்ல. நான் ஃபுல் யுத்தத்தையும் பார்த்தேன்னு அந்த சிறு சொல்கிறது. तो वास्तव में ये जो रामायण महाभारत की जो घटना ये है, ये संगम युग की यादगार है। आज अगर हमारे साथ में बाबा ना होता, आज हमारे जीवन में जो भी कलाएं हैं, विशेषताएं, हमारे अंदर जो जो की उस प्राप्ति है, सारी प्राप्तियों का आदर, कलाओं का आदर बाबा। अगर मेरे जीवन में बाबा ना होता तो हम विजयी ना बनते। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा
मैंपन आता है, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ये मैं आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जीवन में विघ्न आते हैं, समस्या आते हैं, और इस मई के कारण हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, शुभ भावना नहीं रहती, और जो बाप समान स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बनती, और इसीलिए ये समय समीप नहीं आ रहा है। பாபா சொல்றாங்க, நம்முடைய நினைவு சின்னம் தான் பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் யுத்தம் நடந்ததாக மகாபாரதம் ராமாயணம் எல்லாம் சொல்லப்படுது. சங்கம யுகத்தின் நினைவு சின்னம் வாழ்க்கையில ஜீவன்ல பாபா வந்ததுனாலதான், பாபா இருக்கிறதுனாலதான், செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா, அதனாலதான் வெற்றி கிடைக்குது. கிருஷ்ணர் கூட இருந்தாங்க, சக்கரம் வேலை பார்க்குது, அதனாலதான் வெற்றி கிடைத்தது. இங்கு பாபா இருக்கிறாங்க சங்கம யுகத்துல என் கூட, அதனாலதான் வெற்றி கிடைக்குது. அப்படி நினைக்கணும். நான் என்னோடது, என்னோட விசேஷத்தை அப்படி நினைத்தால் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்காது. எப்படி பாப் சமான் ஆகுறது? பாபா பாபா நினைக்கணும், பாப் சமான் ஆகணும், செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா. அப்பதான் சமயம் அருகில் வரும், நேரம் அருகில் வரும். जैसे पांडवों ने लास्ट तक भी कृष्ण को नहीं पहचाना कि कृष्ण के कारण हम इतनी समस्या, इतने पेपर, इतने प्रॉब्लम को पास होकर के आज यहाँ तक पहुंचे। उन्होंने सोचा कि हम ही कर रहे हैं सब कुछ, हमारे अंदर ही ताकत है, और इसीलिए लास्ट तक उन्होंने कृष्ण को नहीं पहचाना। इसी तरह अभी भी हमने बाबा को नहीं पहचाना कि आज हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमारा यज्ञ इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सेंटर्स इतने आगे बढ़ रहे हैं, इसके पीछे ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्तिगत, कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो करता तो हम सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें सदा निरहंकारी बनने की जरूरत है। நாம சதா நிரகங்காரியாக ஆக இருக்க வேண்டும். செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா. நாம முன்னேறணும், நமக்கு வெற்றி கிடைக்கணும், சென்டர் முன்னேறணும், எல்லா விஷயத்துக்கும் பாபா நினைக்கணும். அத நான் என்னோடது, நானாலதான், என்னுடைய விசேஷத்தா, இந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. அப்போ பிரச்சனை வந்துடுது. நான் செய்த என்னோட விசேஷத்தா, அப்ப பிரச்சனை வந்துடுது. பாபா செய்யறாங்க, அப்ப வெற்றி கிடைத்திருது. तो ये मेरे साथ बाबा है, बाबा करा रही है, हम भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी आत्मिक स्थिति ही नहीं है। और आत्मिक स्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे योग तपस्या जो होनी चाहिए, ज्वाला स्वरूप स्थिति होनी चाहिए, वो नहीं है। और योग में भी विघ्न आते हैं, ये अभिमान के विघ्न आते हैं। जब हम योग में बैठते हैं, सारा दिन हमें जब किसी ने अपमान किया है, निंदा किया है, किसी ने हमको पूछा नहीं, ये सारी तमाम अभिमान वाली, अपमान वाली बातें योग में हम बैठते ही शुरू हो जाता है। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर लगता है कि ये इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसने मुझे पूछा ही नहीं। ये सारे निगेटिव संकल्प चलते हैं, और वो हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं रहती। इसीलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति न होने के कारण हमारे जीवन में विघ्न समस्या आते हैं। और जो बाबा, जैसे बाबा दया करता है, क्षमा करता है, आपका ऊपर उपकार करता, वो जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं होती। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा इस अभिमान के मैपन को क्या करो, मैपन के पूछ को जला दो, बाप समान बनकर के समय को समीप लाओ। பாபா சொல்றாங்க, ஜுவாலா சுரூப ஸ்திதி இருக்கணும். நான் என்னுடையது அந்த நான்ற வாளை எரித்து விட வேண்டும். பாபா போல அபகாரிக்கும் உபகாரம் செய்ய வேண்டும். பாப்சமான் ஆகணும். அப்ப நேரம் அருகில வந்துரும், சத்தியுகம் வந்துரும். ஆத்மீக ஸ்திதி இருக்கணும், யோகா இருக்கணும், யோகா ஜுவாலா சுரூபமா இருக்கணும். செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபான்னு நினைக்கணும். நான் என்னுடையது நினைக்கவே கூடாது. वो जो निरहंकारी स्थिति वाला निश्चिंत रहता है, बेफिक्र बादशाह होकर के रहता है। दादी प्रकाश मणि बहुत खुश रहती थी। तो मीडिया वालों ने दादी को पूछा, दादी आप इतने सारे कारोबार संभालती हैं तो भी इतना खुशी में क्यों रहती हैं? दादी कहते, मैं रोज बाबा के पास जाती हूँ रात को सोने से पहले। कहते, बाबा ये शांतिवन तेरा, मधुवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, ये हॉस्पिटल तेरा, ये सारी सेंटर की बहनें तेरी, सारे जोन तेरे, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। सारी बातें बाबा के सामने समर्पित करके के वो खुद अकेले होकर के मस्त होकर के सो जाती थी। इसी तरह हमें भी रात को सोते समय ये जो कुछ है सब बाबा आपका है, मेरा कुछ भी नहीं। ये जो भी आगे पीछे हुआ, कहते ना गीता का विचार है, तुम कर्म कर, फल की आशा नहीं रख,
लेकिन हम क्या करते, कर्म तो करते हैं, उसके अंदर फिर पूछा नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इसलिए बीती को बिंदी लगाना, बिंदी स्वरूप में रहना, तब निरहंकारी वाला जीवन का आनंद ले सकता है। उसका खुशनुमा चेहरा, हाँ, उस शुभ भावना वाली बातें तो अनेक आत्माओं की सेवा कराएगी, बाबा की प्रत्यक्षता कराएगी। நம்மளுடைய முகம் கூட அப்படி இருக்கணும். நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியான மலர்ந்த முகம் பிரகாஷ்மணி தாதிஜி போல அப்படி இருக்கணும். சுப பாவனை இருக்கணும். நாம ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடணும். என்ன கர்மா செய்யறோம், பாபா செய்யறாங்க, நாம ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க வேண்டும். பாபாட்ட பிரகாஷ்மணி தாதிஜி என்ன கேள்வி கேட்டாலும், பிரகாஷ்மணி தாதிஜிட்ட என்ன கேள்வி கேட்டாலும், எப்படி இப்படி நீங்க இருந்துடுறீங்க? தாதி எப்பவுமே எல்லா போட்டோஸ்லயும் சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க, ஃபேஸ் அப்படி இருக்கும். அப்ப எப்படி இப்படி இருக்கிறீங்க? உடனே தாதி சொல்லுவாங்களாம், செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா. தினம் தினம் நைட்டு, ரெகுலர் நைட்டு பாபாட்ட சொல்லிடுவாங்களாம், பாபா சாந்திவன் தேரா, சாந்திவன் உங்களோடது, ஞான சரோவர் உங்களோடது, இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் உங்களுடையதவங்க, நானும் உங்களுடையவங்க, உங்களுடைய காரியம் உங்களுடையது, நீங்க தான் செய்பவர் செய்விப்பவர். பாபா தேரா, பாபா உங்களுடையது, பாபா உங்களுடையது, நீங்க தான் செய்பவர் செய்விப்பவர் அப்படி சொல்லிடுவாங்களாம். எதுவுமே நான் எனதுன்னு சுமை எடுத்துக்கல தாதி. इसलिए अब हमें बाप समान बनना है। इसलिए ज्वाला स्वरूप योग की तपस्या, ज्वाला स्वरूप मतलब मेरे भ्रुकुटी में सदा ये आत्मिक स्थिति बनी रहे, मेरा योग पावरफुल बना रहे। इसलिए सारा दिन हमें चलते फिरते कर्म करते हर परिस्थिति में क्या करना है, निरहंकारी होकर के रहना है। और ये निरहंकारी स्थिति हमारी निराकारी स्थिति लाएगी, और निराकारी स्थिति ही हमें निर्विकारी अर्थात विकारों पर जीत दिलाएगी, और इससे हम बाप समान बनेंगे। நாம ஃபர்ஸ்ட் நிர் அகங்காரி ஆக வேண்டும். நிர் அகங்காரி, செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா. அடுத்து நிராகாரி, ஆத்மீக ஸ்திதி நிராகாரி. ஃபர்ஸ்ட் நிர் அகங்காரி, அடுத்து நிராகாரி, தேர்டு நிர்விகாரி ஆக முடியும். ஜுவாலா சொரூப யோகா இருக்க வேண்டும். अभी भी हमारे ऊपर कोई ना कोई पुराने संस्कार वार करते हैं, कोई ना कोई विकार वार करते हैं। क्यों वार करते हैं? क्योंकि अभी तक मेरी निराकारी स्थिति नहीं है। जो आत्मिक स्थिति, अशरीरी विधेयी स्थिति रहनी चाहिए, वो नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम निरहंकारी नहीं बने। हाँ, अभी भी हमारे अंदर मेरे कर्तापन का भाव है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और जब मैं कहते हैं तो बाबा हमारे से कोसों दूर रहता है। जहाँ मैंपन आया, बाबा हमारे से कोसों दूर हो गया, हम अकेले हो गए। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा बाबा को साथ रखने के लिए बाबा कराता है, बाबा कराता है, बाबा कराता है तो समझेंगे तो बाबा साथ में आएगा। मैं करता हूं कहेंगे तो बाबा कहेगा तुम ही कर लेना, मैं चला जाऊं। பாபா பாபா செய்யறாங்க, பாபா செய்யறாங்க, பாபா சாத்துகே, பாபா என் கூட இருக்காங்க, செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா. அப்படி நிரகங்காரியா இருந்தா கூடவே இருந்து எல்லாமே செய்வாங்க. தான் நான் செய்யறேன் தான் தனியாக்கிட்டாங்கன்னா வெற்றி எப்படி கிடைக்கும்? ஈகோ இருக்கும் போது பாபா எப்படி கூட இருப்பாங்க? तो जो हम आपस में जो संबंध संपर्क में आते हैं वो हमारे से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हमारा देहाभिमान के कारण हम उनको कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं जो रिगार्ड देना चाहिए, उसकी कमियों को देखते हैं, कमजोरियों को देखते हैं, उसको वाइब्रेशन नहीं मिलते। इसीलिए वो हमको जो दुआई देनी चाहिए वो नहीं देता, और हम वो ना वो संतुष्ट है हमसे, ना हम उनसे संतुष्ट है, और इसलिए खजाने लीकेज होते जा रहे। கஜானாவை சேமிக்க வேண்டும். அப்படி லீக்கேஜ் ஆகக்கூடாதுன்னா நாமளும் திருப்தியா இருக்கணும், அவங்களையும் திருப்திப்படுத்தணும், செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா நினைக்கணும், பாபா கே சாத், பாபா கூடவே இருக்கணும். ठीक है, तो वैसे तो समय हो गया, इसलिए मैं यहीं पूरा करता हूँ, क्योंकि मुझे बोला था 1 घंटा तक करेंगे। तो बहुत अच्छा है इसका ज्वाला स्वरूप स्थिति कैसे बनाना है क्या। तो अगले 15 दिन तक हमें चेक करना है कि कहीं मेरे अंदर अभिमान ना आए, और इसलिए निरहंकारी होकर के रहना है, और मैंपन की पूछ को जलाना है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहना है। ये हमें अगले 15 दिन, क्या मुझे लगता है अभी ईस्टर्न टर्न है, अगले 30 तारीख को फिर बाबा आएगा। तो 30 तारीख की मुरली चलने तक हमें जो अभी सुनी हुई मुरली दोबारा, मुझे लगता है ये मुरली हर एक के व्हाट्सएप में तो आती है, तो रोज सवेरे अगली मुरली चलने तक रोज सवेरे हमें क्या करना है, ये मुरली पढ़नी।
जो चली हुई सीजन की मुरली, और अगले 15 दिन तक हमें वो मुरली का चिंतन मंथन करना है, और यही मुरली हमारे कानों में गूंजती रहे 15 दिन तक। तब जाकर के एक पूरी मुरली को क्या बाबा का भाव क्या है, वर्तमान समय हमारे कौन से पाठ कच्चे हैं जो बाबा रिवाइज कर रहा है, इसको हमको पता चलेगा। நமக்கு பாபா ஹோம்ஒர்க் கொடுத்திருந்தாங்க. ஒண்ணு ஒரே ராஜ்யம் ஒரே தர்மம், ஏக் ராஜ்யம் ஏக் தர்ம அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த ஹோம்ஒர்க் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஹோம்ஒர்க், இப்ப பிரசன்ட் ஹோம்ஒர்க் நெக்ஸ்ட் பாபா மீட் வரைக்கும் இந்த ஜுவாலா சுரூப ஸ்திதி செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா இந்த வாட்ஸ்அப்ல எல்லாருக்கும் முரளி வந்துருது ரெகுலர். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாபா மீட் பண்ற வரைக்கும் முரளி படிக்கணும், தாரணை செய்ய வேண்டும், ஹோம்ஒர்க் செய்ய வேண்டும். அப்போ நினைவுல ஆயிடும், பிரிண்ட் ஆயிடும், மறக்காது. ஒரு பொழுதும் பிரிண்ட் ஆயிடும், மறக்காது, தாரணை ஆகும். ठीक है, हम यही पूरा करेंगे। बाकी कभी ज्वाला स्वरूप स्थिति के बारे में कभी क्लास करेंगे, और दूसरा निरहंकारी हम कैसे रहना है, इसके बारे में काफी सारे पॉइंट्स मेरे पास हैं, तो उसके बारे में भी अलग से हम कभी क्लास करेंगे। तो इस अभिमान को हमें समाप्त करना है, क्योंकि सबसे बड़ा विकार है अभिमान, ईगो। हाँ, अभिमान आया, आपस में संबंध बिगड़ गए। हाँ, सभी को खत्म पराजय करने वाला यही दुर्गुण है, इसको समाप्त करना है। तो ये हमें पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति। இப்ப நாம புருஷார்த்தம் செய்யணும். நிராகாரி நிர்விகாரி நிரகங்காரி சொல்லுவாங்க இல்லையா, வாய்ந்தி சொல்றாங்க நிரகங்காரி ஆகணும், நிராகாரி நிர்விகாரி ஆக முடியும். ஜுவாலா சுரூபம் இதெல்லாம் நாம தாரணை செய்யணும், ஹோம்ஒர்க் செய்யணும், புருஷார்த்தம் செய்ய வேண்டும். இப்பொழுது பிரசன்ட் நேரம் அப்படி இருக்கு, அப்படி புருஷார்த்தம் செய்ய வேண்டும். இப்ப டைம் அனுசாரமா பிரதர் முடிச்சுக்கிறாங்க. அடுத்து பாய்ஜி சொன்னாங்க நிரகங்காரி அந்த டாபிக்ல அடுத்தடுத்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பண்ணுவாங்க. ஜுவாலா சுரூபம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் நமக்கு அடுத்து கிளாஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப நாம கேட்டதை ஹோம்ஒர்க் செய்ய வேண்டும். தேங்க்யூ பகவான் பாய்ஜி, பகுத் பகுத் தன்யவாத். தேங்க்யூ. ஓகே, ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி பிரதர், தேங்க்யூ பிரதர். சிஸ்டர், நமக்கு இப்ப பிரதர் வந்து கமெண்ட்ரி தருவாங்களா? அந்த ஒரு 2 மினிட்ஸ் நமக்கு பாபா தேங்க் பண்ணிட்டு வகுப்பு நிறைவு பண்ணிக்கலாம். டெய்லி நம்மளுடைய அவ்யக்த வாணி நடக்குது, அது முடிஞ்ச உடனே நம்ம ஒரு சின்ன கமெண்ட்ரியோட வகுப்பை நிறைவு பண்ணுவோம். भाईजी 2 मिनट कमेंट्री दे रहे हैं आप? नहीं, मैं तो अभी नहीं दूंगा कमेंट्री। हाँ, ऐसे योग चला करके पूरा करेंगे, क्योंकि मेरे को फिर कहीं थोड़ा वॉकिंग में मैं जाऊंगा, थोड़ा बाहर टाइम हो जाएगा। ஓகே பாய்ஜி, நான் சொல்லவா மாதாஜி? ஓகே சிஸ்டர், ஓகே. தேங்க்யூ பாய்ஜி, தேங்க்யூ பாய்ஜி. ஓகே, ஓம் சாந்தி. धन्यवाद भाई. அன்பு சகோதரருக்கு நன்றிகளையும் வணக்கத்தையும் சொல்லிடுங்க சிஸ்டர். தேங்க்யூ, शुक्रिया பாய்ஜி. माताजी ने कहा आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाईजी. जैसे वो मुरली रिवाइज करना जरूरी है, ये जो चलती है ना। அவசியம் ரிவைஸ் பண்ணுங்கன்னு பாய்ஜி சொல்றாங்க. எஸ் பிரதர், ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, ஓம் சாந்தி. உங்க முன்னாடி இருக்கிற பாபாவை பாருங்க.